السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ایک اہم مدعے پر، ایک اہم موضوع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ پورے ہمارے ہندوستان کے ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مسلمان حضرات جو کر رہے ہیں ہمارے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں وقف بورڈ امینڈمنٹ بل 2025 پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا۔ اس کو سوارنا کہتے ہیں، امینڈمنٹ ترمیم بولتے ہیں، یعنی ایک چیز کو، نئی چیز کو لایا گیا، ایک نیا قانون کو لایا گیا۔ اب دوستو، وقف بورڈ امینڈمنٹ بل کے خلاف میں احتجاج کر رہے لوگ، پروٹیسٹ اور جیل بھرو آندولن بھی کر رہے ہیں، مگر میرا یہ کہنا ہے، پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو، مگر قانون کے دائرے میں رہ کر، کبھی بھی ہم قانون سے کھلواڑ نہیں کرنا۔ اور یہ جو جیل بھرنے کا جو کاریہ ہے، جیل بھرنے کا جو طریقہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے غلط ہے۔ احتجاج کر سکتے ہم، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق کے لیے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے، مگر جیل بھرنا، جیل بھر کے کاریہ کرنا، اس میں کیا ہے، غریب مسلمان ہی جا کے جو ہے پریشان ہونے والے ہیں۔ بالکل آٹو چلانے والے، موز کی بنڈی والے، یہی لوگ جا کے پھر جو ہے وہ جیل بھرو کاریہ میں پھنس جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں تباہ ہوتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ پرامن طریقے سے ہم احتجاج کریں اور ہم اپنی آواز کو اٹھائیں۔ آواز کو اس لیے اٹھائیں کہ دیکھو جی، میڈیا والے پہلے، آپ کو معلوم ہے، جب بابری مسجد کو جب توڑی گئی، اس کے بعد میں جو ہے جب مندر بنی گئی، تو اس وقت میں میڈیا والوں نے کہا کہ مسلمان اگر بڑا دل دے دیے تو مندر بنانے میں کیا غلطی ہے، کیا حرج ہے، یہ میڈیا والے نے کہا۔ مگر نتیجہ اس کا یہ نکلا، مسلمان جب بڑا دل کر کے خاموش رہ گئے، نتیجہ یہ نکلا، اس کے بعد میں ہر مسجد کو دشمن اسلام نے کھودنا شروع کر دیا، ہر مسجد کو کھودنا شروع کر دیا کہ مسجد کے نیچے مندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تربل طلاق، تو اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے، پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے، تو پھر آنے والے دن ہم کو یہ بات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ دوسرے قانون بھی لائے جائیں گے۔ مثلا ایک مثال بتاتا ہوں، برقعے کے اوپر بھی جو ہے بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے آئے، برقعے کے تعلق سے کالجوں میں بہت سارے چیزیں سامنے آئے آپ کو، جہاں پر برقعے اتارے گئے۔ تو اب یہ بولیں گے قانون، اب ایسے ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے، قانون کو جو ہے ہم جو ہے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو وہ آئندہ پھر ایک قانون لائیں گے کہ دیکھو جی، برقعوں کو اتار دو، کیونکہ برقعوں کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے بہت سارے کیا بولتے ہیں، ٹیررسٹ آتے ہیں، یا پھر کچھ برقعوں کے آڑ کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر برائیاں پیدا ہوتے ہیں، برقعے کے آڑ کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے چوری ہو رہی ہے، برقعوں کے آڑ کے اندر جو ہے آپ کو دیش کو برباد کرنے کے طریقے ہو رہے ہیں، لہذا برقعوں کو اتار دو۔ اب ایک قانون لائیں گے ایسا۔ اس لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کر
आज देखिए देखिए 2 कानून पास हो गए, एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, दूसरा ट्रिपल तलाक। इस तरीके से जो है फिर बुर्खे के ऊपर भी विवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमान तमाम हजरात इसके ऊपर आवाज उठाए, मगर कानून के दायरे के अंदर रहकर ये जेल भरने का कार्यक्रम हम नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात बताता हूं बड़ी मजे की, आप मुसलमान लोग पॉलिटिकल साइंस को जाने, पॉलिटिकल साइंस को जाने, आप अच्छी बातों को समझे, अपने इल्म को बढ़ाएं। तो क्या है, आपके जेल भर कार्यक्रम से आपके प्रोटेस्ट भी काम नहीं चलता। याद रखो, आपके प्रोटेस्ट, आपके जेल भरी कार्यक्रम से भी कानून नहीं चलता। कानून चलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एमएलए से, मेंबर ऑफ एमएलए से चलता। कानून जो चलता है एमएलए से और एमपी से चलता, ना कि हम जेल भरने की वजह से हमारा कानून नहीं चलता। इसीलिए यह हक की आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाए, और उस असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना था कि मेरे साथ पार्लियामेंट के अंदर 2 एमपी अगर मौजूद होते तो फिर और कुछ बात होती। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं अगर 6 एमपी मुसलमान अगरचा वोटों में नहीं बटकर 6 एमपी को बनाते हैं तो फिर पार्लियामेंट में बहुत बड़ी ताकत हमारी बनती। ये एहतजाज से, ये जेल भरो कार्यक्रम से कानून नहीं बदलता। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, संविधान चलता है हिंदुस्तान के आईन से, हिंदुस्तान के कानून से, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर से। लिहाजा आप ये कोशिश करो। और दूसरी मेरी एक बात यह है आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ऐसी औरत से निकाह करो जो आपको ज्यादा मोहब्बत करती हो, और उनके खानदान को देखो, उनके औलादों को देखो, ताकि तुम अपनी औलादें कसरत से पैदा करो, ताकि मैं क़यामत के दिन फख्र करूं। क़यामत के दिन नहीं फख्र करूं, कसीर तादाद को पैदा करो, कसीर तादाद को बनाओ। यह हदीस का मफ़हूम है। तो मैं बोलने की बात यह है, एक एमपी, एमएलए और बड़े लीडर्स हमें पैदा करना है, और दूसरा हम जो है, हम 2 और हमारे 2, इसको बंद करना है। आज क्या है, मुफलिस की ख्वाब की वजह से, मुफलिस की ख्वाब की वजह से कैसा जीएंगे, क्या करेंगे। आप कुरान पढ़ते हैं, वतर्ज़ुक़ु मान तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला बेहिसाब का रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द तारीफ अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। ये आप मानते हुए आप अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर ये बात रखें कि बच्चे पैदा होंगे तो कैसे, उनकी परवरिश कैसे की जाए, उनकी तालीम कैसे की जाए, तो फिर ये शिर्क है, आपके ईमान के अंदर कमजोरी है। इसलिए मैं बोलता हूं, एमपी एमएलए बनाओ, फिर अपनी कसीर तादाद को बढ़ाओ। ये गलत है क्या? इससे संविधान चलता, एमपी और एमएलए और कसीर तादाद से ही कानून और संविधान चलता, मेरे प्यारे भाइयों। और दूसरी बात फिर मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुल्क भर के अंदर, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है, आप इसके अंदर शोर शराबा नहीं करना चाहिए। दुश्मन ने इस्लाम हमारी गलतियों को देखते रहे हैं, ताक रहे हैं, कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। अमन और सुकून के साथ कानून के दायरे में रहकर हम प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, अपनी हक की आवाज को उठाना। और हक की आवाज को उठाने के लिए कोई 1-2 आदमी नहीं, सारे मुसलमान उठे। तो दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर
आवाज उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो आदमी असदुद्दीन साहब जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बावजूद भी लोग जो है उनके पीछे गिरे। अरे भाई, उन्होंने जाने, उनके आमाल जाने, उन्होंने मदीना मुनव्वरा में रहकर कह रहे हैं कि बीजेपी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पर इल्जाम डाल रहे हैं, और मैं भी इसकी मजम्मत करता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर बहुत कम है। अल्लाह ताला उन जैसे लीडरों को और भी पैदा करे। ये जितने भी लोग जो है उनके ऊपर एतराजात कर रहे हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, इस्लाम का धज्जियां उड़ा रहे थे, इस्लाम को बदनाम कर रहे थे मीडिया वाले, आज मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। आप देखो, कई आलिमा डिबेट पे गए, अपना मुंह काला करके आए। आपको मालूम, कई आलिमों की, कई स्टेट पर कई लोगों की बेइज्जती हुई, क्योंकि उनको संविधान नहीं मालूम, उनको कानून नहीं मालूम, उनको लॉजिक नहीं मालूम, किसके सामने कैसी बात करना नहीं मालूम, और जलील होकर आए। वो वीडियो भी आप लोगों के सामने है। अब एक बंदा हमारा है जो वाहिद मुसलमानों के लिए काम कर रहा है और उसके ऊपर एतराजात कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। और दूसरा इल्जाम डाल रहे हैं कि जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ प्रॉपर्टी को खाए। अरे भाई, वो खाए नहीं खाए अल्लाह बेहतर जाने, मगर वो खाया भी तो हमारा लीडर है और बांटेगा मुसलमानों के लिए। अब इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारा मुसलमान लीडर है, वो हमारा अमीर है, वो इंशाल्लाह हमारे लिए इंसाफ करेगा। मगर मैं ये बोलता हूं कि आप ऐसा एक लीडर को पैदा करके बताओ जो असदुद्दीन ओवैसी जैसा हो, जो पार्लियामेंट में शेर की तरह चीखता हुआ, पुकारता हुआ बात करने वाला। आज अगर 6 एमपी होते हमारे तो आज ये नौबत हमें देखना नहीं मिलती। आज हम सपोर्ट किसको करें? अखिलेश यादव और जो है दूसरे लीडरों को और नीतीश कुमार को, ऐसे लोगों को हमने अपना रहबर चुना। क्या गलत बोल रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब, बताओ मुझे। आप खामियां निकालना बोले तो बहुत सारे खामियां तो मिल जाते। उन्होंने क्या गलत बोला है असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हमारे एमपीओ को बढ़ाओ, हमारे एमएलए को बढ़ाओ, हमारे मजलिस की पार्टी को बढ़ाओ? ये क्या गलत ही तरीका नहीं? जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मेरे भाई, अगर हमारे एमपी ज्यादा अगर होते तो आज पार्लियामेंट में हमारी आवाज कैसी बुलंद होती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को आप समझो। और असदुद्दीन के ओवैसी के खिलाफ में जो भी प्रचार कर रहे हैं और कुछ वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, कब से की वीडियो बना के जो है फेक वीडियो बना के डाल रहे हैं, सब फेक है मेरे भाइयों। वो बंदा बोल दिया मदीना मुनव्वरा में खड़े के बोल रहा कि मेरा ताल्लुक दुश्मनान इस्लाम से नहीं है। छोड़ दो भाई, उसके खिलाफ में क्यों जा रहे? और फिर उन जैसा लीडर भी बताओ फिर हमें, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर उन जैसा लीडर बताओ हमें, कोई जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करने वाला, जो मीडिया के धज्जियां उड़ाने वाला, मीडिया को जबरदस्त अंदाज में बात करने वाला कोई है नहीं। और जितने भी लोग गए डिबेट के लिए वो अपना मुंह काला करके आए। मेरे प्यारे दोस्तों, बात बोलने से पहले समझना चाहिए। और मैं यह अपील करता हूं तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से, कानून के दायरे में रहकर अपना काम करें और जल्दबाजी ना करें और सब्र से काम लें। और मेरी यही अपील है आप लोगों के साथ। इंशाअल्लाह फिर दूसरे वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।